Hello students, welcome to another new session. So in this new session we are going to discuss or extend our discussion on the topic different types of contract. In the previous class we have discussed about different or the basic concept of contract, and in the previous to those classes we have already discussed about the different types, clear, or different forms of mercantile law, and under that we have important act which is Indian Contract Act, clear. So in the classes we have already discussed about Indian Contract Act, what it means, how it is created, its origin, scope, then the basic terms regarding Indian Contract Act, and what a contract mean, actually the definition of contract. And today in this session we are going to discuss a little bit about the different types of contract, clear. So let's start. Okay, so as in the previous class I draw a diagram about the different types of contract. Okay, so I hope all note those in your notebook. So today, rather again drawing the same format, I will start the session from discussion. Okay, so roughly if I say, so we have basically three types of contract, that is according to creation or what we call formation, according to creation or formation. So under that we have express contract, secondly implied contract, and the third one is quasi or tacit contract. Okay, ठीक है. Then secondly, the second division according to the execution, or what we call the performance. Performance means to do, clear, what you need to do, clear. According means to keep your promise. So according to that we have executed contract, executory contract, and third one is unilateral or bilateral contract. Okay, unilateral or bilateral. Then thirdly, according to the validity or the enforceability. Enforceability means whether law approve that particular agreement or not. As I said in the last class that we call it different types of contract, or we also call it as agreement, because some of here इधर मतलब ये सब जो टाइप्स में ऐसे कुछ हैं जो कि पहले जब बनता है तो एग्रीमेंट में ही ये वो सब डिफाइन होता है, जैसे कि एक्सप्रेस ले लो, कि इम्प्लाइड ले लो, कि क्वासी ले लो, ये सब एग्रीमेंट के टाइम पे ही रहता है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब किससे वो बना है उससे वो हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये मतलब ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्रीमेंट भी कोई बोले तो भी वो सही है, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो भी सही है। आप कोई टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कहीं पे ये सब दिया रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एंड कहीं पे दिया रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही सही है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि ये है वो अलग है, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, दोनों में सही चीज है, ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। क्लियर? बट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में सिमिलैरिटी कुछ कुछ है, बट उन दोनों में डिफरेंस है जो हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो कि जब हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? वो टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये भी हो सकता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बट इसको हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो था वो एनफोर्स हो गया, इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं, है कि नहीं? अगर वॉइड होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोले एग्रीमेंट बोले दोनों सही है, ठीक है। तो बाकी अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी वी हैव valid contract, then voidable contract, and then the third one is void contract. Okay, सही है? तो ये तीनों हैं the types of contract. So today we are going to discuss each of the type, clear, its definition and some example, क्योंकि हर एक टाइप में उसका कुछ अलग मीनिंग रहता है, तो आपको क्या करना है वो मीनिंग को डिफाइन करना है सबसे पहले एंड एग्जाम्पल देना है, बिकॉज लॉ एक ऐसा पेपर है, एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट गिविंग द एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम्पल अच्छे से नहीं समझोगे तो वो कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाओगे। सो दैट्स व्हाई एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप भी अगर कभी भी एग्जाम में वो चीजों को अगर डिफाइन करते हो क्वेश्चन में, सो रिमेंबर टू ड्रॉ ए बेटर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल जितना बढ़िया रहेगा आपका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो है, मतलब द थिंग दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, वो उससे पता चल जाएगा कि आप कितना बेटर वे में एग्जाम्पल दे पा रहे हो, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ओके, तो चलो जैसे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिएशन मतलब फॉर्मेशन, क्रिएशन, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब तैयार होता है कैसे। जैसे कि हम सबको पता है, क्लियर, अब तक के हमें पता चल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लीगल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, एटलीस्ट टू, मिनिमम 2 जन चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें होता क्या है, सबसे पहले वो शुरू होता है फ्रॉम ऑफर, एक सिंपल ऑफर जाता है, ठीक है, फिर ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, फिर म्यूचुअल प्रोमिस होता है, फिर कंसिडरेशन के बाद क्या होता है, एग्रीमेंट में वो सब डिस्कशन होता है क्या करना है, मतलब द रेसिप्रोकल प्रोमिस, कौन किसके लिए क्या परफॉर्म करेगा, कौन किसके लिए क्या करेगा, है कि नहीं, दैट इज द म्यूचुअल प्रोमिस, और दैट वी कॉल कि उन दोनों के बीच में क्या कंसिडरेशन होता है, और उसको वो लोग एक सिंपल से पेपर में नोट करते हैं, दैट इज एग्रीमेंट, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं, तो उधर हो जाता है एग्रीमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, इतने तक जो है ना, मतलब जो ऑफर आया एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट किया, फिर कंसिडरेशन हुआ, ठीक है, तो ये सब जो होता है ना, इसी को हम मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट इधर से ही ना शुरू होता है, क्रिएट, द क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसी को हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन। क्लियर?
सो इन दिस वे कैसे होता है, ये तो होता है इधर एक्सप्रेसली, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? आप एक एक डिफाइन करो। अंडर द क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या आता है, वी हैव टू एक्सप्रेस समथिंग। एक्सप्रेस करना है का मतलब क्या है, कुछ बोलना है कि नहीं, कुछ बोलना है। वी हैव टू एक्सप्रेस समथिंग, कुछ बोलना। बोलना मतलब कैसे, इधर फ्रॉम योर माउथ, क्लियर, बाय वर्ड्स और बाय राइटिंग। क्लियर? इफ एन एग्रीमेंट इज क्रिएटेड, क्लियर, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय राइटिंग, मतलब ऑफरर ने ऑफरर, क्लियर, व्हाट ही वांट्स, हिज इंटेंशन, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं जो वो करना चाहता है, क्लियर, व्हाट इज इन हिज माइंड, क्लियर, टुवर्ड्स द प्रोमिसी, टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, वो क्या करता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करता है, एक्सप्रेस करता है कैसे, बाय राइटिंग और बाय ओरली। वो बोलेगा फेस टू फेस और बाय फोन, ठीक है, और बाय राइटिंग, राइटिंग में वो देगा। क्लियर? सो इफ ए particular agreement is created by writing or by words of mouth, then that type of agreement is called as express agreement, and when it is enforced it is called as express contract. Clear? So if a contract is created by the words of mouth or by writing, then that contract is called as express contract. Clear? आ गया समझ में? ये दो चीजों को छोड़ के, ये दो चीज मतलब राइटिंग और वर्ड्स ऑफ माउथ, ये दोनों को छोड़ के अगर और कुछ हुआ तो उसको हम एक्सप्रेस में नहीं लेंगे। हम उसको एक्सप्रेस बोलेंगे ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड और द एग्रीमेंट इज क्रिएटेड इनिशियली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय राइटिंग, क्लियर, बाय बोथ द पार्टीज। ऑफरर ने उसको राइटिंग में दिया, ऑफरी ने उसको राइटिंग में एक्सेप्ट किया, ठीक है, और ये बोला बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, उधर से भी रिटर्न आया बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो दोनों केसेस में हम उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पहले तो एग्रीमेंट, फिर एनफोर्स होने के बाद हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, ठीक है। सो इसको अगर डिफाइन करना है तो लिख दो, व्हेन ए प्रपोजल और ऑफर इज मेड बाय words of mouth or by writing by words of mouth or by writing, clear, the agreement is called as express agreement. Express agreement, and when it is enforced by law is called as express contract. Express contract. ओके, पहले तो एग्रीमेंट, फिर उसके बाद एनफोर्स होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सही है, आ रहा है समझ में, है कि नहीं? तो अभी जैसे हमने बोला कि एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल हम लेंगे, चलो लेट आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप कोई आपका और एक दूसरा स्टूडेंट फ्रेंड है, ठीक है, कहीं दूसरे कॉलेज का कि कहीं दूसरे प्लेस का ले लो, क्योंकि एक ही कॉलेज में हम होते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है कि नहीं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बनाते। तो चलो अभी हम ले रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ले लो कि आप जो डिग्री में हो
उसमें एक ऐसा पेपर है जो कि उनके कोर्स में है, और उनके पास कुछ ऐसा कोर्स है जो आपका एक पेपर है। ठीक है, तो आप दोनों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम वो जो 2 पेपर है ना, हम उसका कोचिंग किधर बाहर से नहीं लेते हैं। क्लियर, आप उधर से ले रहे हो, उसका कोचिंग आपको मिल रहा है आपके कॉलेज से, तो वो जो चीज है वो आप हमें बता दो। ठीक है, और मेरे पास मैं जो अपने कॉलेज में मैं जो पढ़ूंगा जो क्लासेस में, वो मैं आपको समझा दूंगा। म्यूचुअल हेल्प का एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सो लेट अस टेक राम ऑफ ज्ञान कॉलेज, राम ऑफ ज्ञान कॉलेज express his willing to help mutually for a paper. Ram of Gyan College express his willing to help mutually for a paper with Shyam of Akash College. ठीक है, Ram of Gyan College express his willing to help mutually for a paper with Shyam of Akash College by writing or by words of mouth. By writing or by words of mouth. Okay, clear? Then Shyam accept the proposal. Shyam accept the proposal by writing or words of mouth. Words of mouth, दोनों में से कोई भी ले लो। राम ने उसको राइटिंग में और वर्ड्स ऑफ माउथ में बोला कि एक पेपर ऐसा है, कॉम्बाइंड पेपर, जो हम म्यूचुअली हेल्प करेंगे एक दूसरे को। श्याम को बोला, श्याम ने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया बाय राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो सिंपली ये एक क्या है, जो ऑफर एक्सेप्टेंस, जो उनके बीच में जो कॉन्सिडरेशन हुआ कि मैं तुमको समझाऊंगा, तुम मुझे समझाओगे वगैरह, जो नोट वोट है सब हम एक्सचेंज करेंगे अब एक दूसरे से, है कि नहीं। तो ये जो हुआ, जो क्रिएशन हुआ ये एग्रीमेंट का, कैसे हुआ? बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय राइटिंग। तो ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बना, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एंड जब ये एनफोर्स हो जाएगा, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? आई होप सब बच्चों को अभी ये समझ में आ गया कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, जो कि बनता है कैसे? बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय राइटिंग। ओके, क्लियर? चलो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि हम एक छोटा, मतलब क्या अपने दिमाग में क्या है, व्हाट इज इन आवर माइंड, क्लियर? हाउ वी एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग इन आवर माइंड टू अदर। कैसे हम मतलब बोलते हैं कैसे, जैसे आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, है कि नहीं? डेफिनेटली कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन करने का बहुत सारा तरीका रहता है। एक तो रहता है वर्बल और एक रहता है नॉन वर्बल। तो ये जो एक्सप्रेस है ना, वो वर्बल में आ गया, है कि नहीं, कि लिखना है और नहीं तो बोलना है, दैट इज वर्बल पार्ट। बाकी दूसरा पार्ट भी है। क्या मैंने आपको क्या बोला? अगर वर्बल है, एक्सप्रेस राइटिंग है, राइटिंग और वर्ड्स ऑफ माउथ है, तो बेसिकली हम उसको ले लेंगे किसमें? एक्सप्रेस में। और जो बाकी है नॉन वर्बल, जैसे कि इशारे देना, कुछ काम करना, है कि नहीं, ये सबको हम दूसरे कैटेगरी में लेंगे, जिसको हम बोलते हैं
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि नॉन वर्बल पार्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है अदर देन एक्सप्रेस, मतलब अदर देन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, then we call it as a implied contract. Or basically we can say when a contract, when an agreement is created by some action, कुछ काम करेंगे हम, ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि पता चले, ठीक है, कि वो हमें कुछ बोल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे by our expression, by our action, कुछ काम करेंगे, कुछ एक्शन दिखाएंगे। क्लियर? जैसे कि ले लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा, राम ने श्याम को कुछ बोला बाय राइटिंग और बाय वर्ड, श्याम ने भी उसको कैसे रिप्लाई दिया, बाय राइटिंग और बाय वर्ड। तो ये हो गया कहते मतलब दोनों साइड से एक्सप्रेस, दैट इज एक्सप्रेस। अगर होता कि राम ने राइटिंग में बोला बट श्याम अगर उसको राइटिंग के बदले और कुछ बोलता तो हम उसको एक्सप्रेस बोलते? नहीं, उसको हम एक्सप्रेस नहीं बोलते, क्योंकि द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट इफ बोथ आर मेड बाय एक्सप्रेस राइटिंग और वर्ड्स देन इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर दोनों साइड में से कोई एक भी अगर छूट गया, मतलब सोचो कि राम ने राइटिंग में दिया बट श्याम ने उसको राइटिंग में नहीं एक्सेप्ट किया, वो कुछ एक्शन से एक्सेप्ट किया, तो उसको हम बोलेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो एग्रीमेंट विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड आर कॉल्ड एज इंप्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लिखना है एग्रीमेंट, व्हेन इट इज एनफोर्स्ड देन इट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट ही लिखना है पहले, ठीक है? सो the agreement are not expressed orally or by writing। ठीक है, आप लोगों ने जो एक्सप्रेस किया है आपका विलिंगनेस, आपका इंटरेस्ट, करना चाहते हैं आप कुछ, that is not expressed by writing or by words of mouth orally। तो कैसे बनता है एक्सप्रेस? the expressions are made by some of your action, your body gesture, your sign, your symbol, your body gesture, ठीक है, योर सम एक्शन, उससे बनता है, तो हम उसको बोलेंगे इंप्लाइड एग्रीमेंट। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चलो हम उसको भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। व्हेन ए प्रपोजल और ऑफर इज मेड बाय other than writing और orally मतलब बोलना, other than writing और orally, the agreement is called as implied agreement। ठीक है, implied agreement हम उसको बोलते हैं। And when it is enforced by law, it's called as implied contract। Clear? Then इसमें और एक लाइन हम ऐड करेंगे कि the offer and acceptance made by some action, कुछ काम, एक्शन मीन्स कुछ हमारा ऐसा कुछ काम, कुछ एक्टिविटी, एक्शन मतलब कुछ एक्टिविटी, हम कुछ ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे कि दूसरे को पता चले कि हाँ ये हमारे साथ कुछ करना चाहता है, कुछ लीगल रिलेशन बनाना चाहता है कि नहीं? सही है? क्लियर? तो चलो बेस्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इंप्लाइड का। जैसे कि सोचो मैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल एक दे रहा हूं आपको कि वन ऑफ योर फ्रेंड, क्लियर, ऑफर यू, क्लियर, वो आपसे बोला बाय राइटिंग और बाय वर्ड्स कि विल यू परचेज माय बाइक, सेकेंड हैंड बाइक,
क्लियर, उसको पता चला कि यू वांट टू परचेज ए बाइक, क्लियर, यू वांट टू परचेज ए सेकंड हैंड बाइक स्पेशली, ठीक है। सो उसको जब पता चला, उसने आपके, सोचो कि आपके घर के पास वो आया और वो आपको बोला कि विल यू परचेज माई बाइक, दैट इज द वैल्यू, क्लियर, जो भी है उसका जो इंटेंशन वो आपको बोल दिया, ठीक है। और बाकी सोचो कि आप अभी ऐसे के कंडीशन में हो को आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, चलो आप घर पे हो, आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा है सिचुएशन। सो आपने क्या किया, वो आपका दोस्त समझ गया कि ये अभी नहीं कुछ नहीं बोल सकता, वो बोला कि ये रहा कि आपके पास रख दिया, उसका जो की बाइक का वो रख दिया की, वो बोला क्या कि इफ यू run the bike, if you take the key and ride the bike, then it mean that you accept my proposal and we will come into a contract, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो चलो इधर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ लिख के देना नहीं पड़ा, आपने क्या किया, सिंपल यू डू सम एक्शन, क्या आपने वो की लिया, वो बाइक ऑन किया और उसमें थोड़ा राइड के लिए चले गए। सो हियर योर फ्रेंड, क्लियर, उसके लिए क्या हो गया, यू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। तो ये जो हुआ, ये जो एग्रीमेंट जो हुआ आप दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सॉरी इम्प्लाइड एग्रीमेंट, बिकॉज हियर वन पार्टी एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस और एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय other than writing or oral, clear, and or we can say or accept it by his action, कुछ काम करके वो दिखाया, तो उसको हम बोलेंगे implied contract, ठीक है, क्लियर, ये बस आपके समझने के लिए। तो चलो अगर हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल ऐसे implied का, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जैसे कि हम देखते हैं कि taking a bus ride or a journey by a travel taking a bus ride or journey by a टूरिस्ट बस, अगर हम इसको लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि देखो जो बस जो चल रहा है, बस वाला आपको, बस रोड पे चल रहा है, उसका मतलब वो बस चला रहा है और कुछ भी, और जैसे हम देखते हैं कि टेकिंग लंच और डिनर in a restaurant or hotel, क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ गया। और विड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM, ये सब जब आप कुछ करते हो, मतलब ऑफर जो पहले से ऑफर दे चुका है, कौन ऑफर दिया है, ये जो बस ओनर, ये जो रेस्टोरेंट ओनर, ये जो एटीएम का जो ओनर, एटीएम का ओनर मतलब जो बैंक, ये सब लोगों ने आपको ऑफर दे दिया, आपके सामने एक चीज रख दिया है कि नहीं, दैट इफ यू वांट यू डू दिस एक्शन, व्हेन यू डू दिस एक्शन देन इट मीन यू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं। कि सोचो कि आपने एटीएम जाके जब विड्रॉ हम करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम विड्रॉ करते हैं, मतलब सब ट्रांजैक्शन हो जाता है बट पैसा नहीं आता है, और डिपॉजिट करते टाइम पैसा मतलब चला जाता है बट क्रेडिट नहीं होता है। तो ये टाइम पे हम क्या करते हैं, वी आर रिलायबल, हमको इतना टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज वी नो while we are doing this, आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने तो कुछ मतलब वो ट्रांजैक्शन करने से पहले हमने तो बैंक के साथ कुछ मतलब डील नहीं किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप उसको समझोगे, है कि नहीं, अगर हम कुछ निकाल रहे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप उसको समझोगे। ऐसा तो स्पेशली कुछ नहीं होता है ना, क्लियर नहीं होता है, बिकॉज ये पहले से हो चुका है,
कि ये एक वैसा कैटेगरी में जाता है, इम्प्लाइड कैटेगरी में, कि दूसरे पार्टी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो सेट कर चुका है, बस आप अगर कुछ परफॉर्म एक्शन दिखा दिए, इट मींस यू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लीगली यू गेट सॉल्यूशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है कि नहीं? क्लियर? जैसे हम जर्नी करते हैं ट्रेन में, ठीक है, तो क्या होता है, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें क्या मिलता है? इंश्योरेंस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि व्हेन वी आर एंटर जर्नी थ्रू ट्रेन और बस, स्पेशल बस में रहता है, सब बस में नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के टूल मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से व्हेन यू एंटर इनटू ए जर्नी, ठीक है, देन यू आर एंटर इनटू ए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप आ गए, है कि नहीं? तो उसके बाद अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हमने तो ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, हमने तो कोई ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो कैसे मिल गया? बिकॉज इट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपके एक्शन ने ही उसको वैलिडेट कर दिया। क्लियर? आ गया समझ में? सो ये हमने जो देखा अदर साइड से एक्सेप्ट कैसे हुआ? बाय योर एक्शन। इधर आपको थोड़ी ना कुछ बोलता है, बस चल रहा है, आपको थोड़ी ना बोलना पड़ता है कि मुझे चढ़ना है, इधर जाना है, ये करना है, आप थोड़ी ना बोलते नहीं, बस चल रहा है, आप उसमें एंटर कर गए, दैट मींस यू आर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। रेस्टोरेंट है, यू एंटर एंड टेक सम मील्स, क्लियर, देन यू आर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब वो खाने के बाद आप नहीं बोल सकते कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो अगर आप बोलोगे कि पेमेंट नहीं करूंगा तो वो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में केस कर सकेगा, क्योंकि उसके पास राइट्स है, बिकॉज उसने आपको ऑफर दिया, खुला करके रख दिया कि आओ खाओ, पेमेंट देके जाओ। तो आप अगर एंटर किए, इट मींस यू एक्सेप्ट हिज ऑफर, कि वो बोल रहा है कि आओ खाओ, तो आप गए, यू एंटर, दैट मींस यू एक्सेप्ट हिज ऑफर, देन यू हैव टू पे, है कि नहीं? वैसे ही बाकी जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे आप ले सकते हो, जहां कि आपको मतलब कुछ लिख के देना नहीं पड़ता है, बस आप कुछ एक्शन कर देने से ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? आ गया? आ रहा है कि नहीं? हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? चलो फिर देखते हैं हम तीसरा, ये और कुछ अलग टाइप का है, जो कि थर्ड वन, विच इज द टैसिट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे होता है? ये ना तो एक्सप्रेसली होता है, ना तो इंप्लाइड होता है, ये कुछ गलती से बन जाता है। देखो हम देखते हैं क्वासी और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं स्टूडेंट्स, जो कि ना तो कोई ऑफर देता है, ना तो कोई एक्सेप्ट करता है, बट ऐसे ही दोनों के मतलब दोनों ऐसे। देखो जो हमने इंप्लाइड में देखा, उसमें हमने क्या देखा? वन पार्टी ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने कुछ काम करके उसको एक्सेप्ट किया। पहले में हमने देखा वन पार्टी ऑफर बाय ओरली और राइटिंग, सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट बाय ओरली और राइटिंग, क्लियर? बट इसमें क्या होता है, ना तो एक्सप्रेस कुछ करते हैं राइटिंग में और ओरली, ठीक है, ना ही एक पार्टी का जो ऑफरर का कुछ इंटेंशन होता है कि मैं इसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं, मैं इसको कुछ ऑफर देता हूं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ऐसे ही बाई मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक मतलब बन जाता है ऐसा। तो वो सिचुएशन में जो कुछ हो जाता है एक सडन सिचुएशन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे पार्टी को कोई लॉस ना हो उसके लिए, ये जो है ना, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, ठीक है। सो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या है जिसमें कि ऐसा मतलब कुछ सिचुएशन की बेस में हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब हम कुछ ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाता है। होता है क्या होता है कि देखो, जैसे हम गलती से कुछ हो जाता है, क्लियर? सोचो कि ए पेडलर मतलब जो घूम घूम के बेचते हैं सामान, है कि नहीं, एक एक प्लेस टू प्लेस, डोर टू डोर जाके जो लोग बेचते हैं, क्लियर, जिन लोग को हम बोलते हैं हॉकर, पेडलर, है कि नहीं, और जिसको हम बोलते हैं क्या, हर एक माल जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, वो लोग आके बेचते हैं, क्लियर।
तो उसमें क्या होता है देखो बेसिकली कि सोचो कि वो लोग आए आपके पास कुछ सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको कुछ सामान वो दिखाते हैं, ठीक है, फिर आपको पसंद आया आप रखते हो, नहीं आप उनको जाने के लिए बोलते हो, ठीक है, तो ये रहता है ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या होता है, समटाइम इट हैपेंस दैट सम ऑफ आइटम और आर्टिकल ऑफ देम क्लियर मिस्टेकली, क्लियर मिस्टेक गलती से रह जाता है, मतलब ऐसा नहीं जानबूझ के भी करते हैं, गलती से भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकता है कि उनका कुछ सामान आपके पास रह गया, आपने खरीदा नहीं, सोचो कि वो आपको 10 पीस दिखाया, आपने उसको 9 पीस रिटर्न किया, एक पीस आपके पास रह गया है कि नहीं, एक पीस आपके पास रह गया, सोचो कि आपने वो जानबूझ के किया कि अनजान में रह गया, बट उसको वो पता नहीं चला, वो चला गया, तो अभी क्या होगा कि सोचो वो चला गया, अभी आप ऐसे बोल सकते कि सिचुएशन टाइम चेंज, एक दिन के बाद अगर वो आके आपको बोलेगा कि मेरा एक सामान आपके पास रह गया, आप प्लीज चेक करो और उसको रिटर्न दे दो, आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में मतलब इफ यू आर ए जेन्युइन पर्सन हो तो आप क्या बोलोगे कि सर ठीक है मैं देखता हूं, अगर चलो आपको रियलाइज हो गया कि गलती से कुछ रह गया, आप बोलोगे हाँ ठीक है ये रह गया था, आप चले गए, मैं अभी रिटर्न कर रहा हूं। बट अगर आपका कुछ मतलब जो इंटेंशन अगर सही नहीं हो, आप क्या बोलोगे? कौन सा सामान, मुझे तो नहीं पता। तो इसमें क्या होगा, गलती से कुछ हो गया बट फिर भी वो जो क्या हो गया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो जो सेलर था उसको लॉस हो जाएगा। तो यही टाइप की जो ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इन सच ए सिचुएशन क्लियर द लॉ डिफाइंस दैट इफ समथिंग इज हैपन मिस्टेकली, कुछ गलती से भी हो गया, वो जो हुआ ना एक्सप्रेस इंप्लाइड में हमारा इंटेंशन था, यही है डिफरेंस एक्सप्रेस इंप्लाइड और जो दूसरा पार्ट है क्वासी में, क्या ये बना इंटेंशनली, ये अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली और जिसको हम बोलेंगे मिस्टेकली, है कि नहीं? मिस्टेक से बन गया, मिस्टेक से आपने उस चीज को रख दिया, तो ऐसा ना हो कि वो जो सेलर को कुछ लॉस हो जाए। इसलिए लॉ क्या डिफाइन करता है कि इफ यू मिस्टेकली टुक समथिंग, यूज समथिंग, आप चलो कि वो लेके यूज भी कर दिए, रख दिए, तो उसको तो आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते, और उसको आप बोलोगे कि सेल भी नहीं हुआ है, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है कि ऐसा अगर कुछ सिचुएशन हो गया कि मिस्टेकली इफ यू यूज समथिंग, इफ यू यूज समबडी or something, some product, some service belongs to other mistakenly, knowingly, unknowingly, then you are bound to pay for that particular product or service, because here you by tacitly, by quasi you enter into a contract, आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि मैंने आपका जो चीज है प्रोडक्ट उसको मैंने कंज्यूम किया, यूज किया, तो उसके बदले में मैं आपको पैसे देने के लिए बाउंड हूं, लाइबल हूं, आई हैव टू पे यू। इफ आई डिनाई टू पे यू देन यू हैव द राइट, यू हैव द अथॉरिटी टू फाइल ए केस अगेंस्ट मी फॉर रिकवरी ऑफ योर पेमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो जो सेलर के पास राइट्स है कि वो आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है टू कलेक्ट हिज रिकवरी, टू कलेक्ट हिज प्रोडक्ट द रिकवरी कॉस्ट। ठीक है, एंड यू हैव टू पे, आप नहीं बोल सकते। अगर ये सोचो कि आपके पास है, आपने उसको रिटर्न कर दिया तो सही है, बट इफ यू ऑलरेडी यूज्ड इट, आपने अगर यूज कर दिया फिर आपको बोलोगे कि मैंने तो खा लिया, मैं तो यूज कर लिया, मैं वो चीज आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो चीज नहीं दे सकते तो पैसा दे दो, वो आप मना नहीं कर सकते। अगर वो आप मना करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर केस हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे कि ए कॉन्ट्रैक्ट which is created not by express intention
not by express intention by either party, a contract which is created not by express intention by either party but is created unintentionally or mistakenly between two person. Here the person mistakenly accept or use. Here the person mistakenly accept or use some product or service is bound to pay for it as he entered into a quasi contract. Clear? So a contract which is not created by express intention either by either party, दोनों के तरफ से कोई भी इंटेंशन नहीं था इसे बनाने का, ठीक है? क्योंकि आपने मना किया, उसने मना किया, वो दिखाना तो एक इंटेंशन नहीं शो करता ना, इंटेंशन था बनाना बट आपने मना कर दिया ना, दैट मींस यू डिनाई योर इंटेंशन इज जीरो, दैट इंटेंशन आल्सो जीरो. उसने भी बोलता ठीक है आप नहीं लो, मत लो, दोनों आप एक दूसरे से चले गए, है कि नहीं? बट इन बिटवीन, क्लियर, अनइंटेंशनली, मिस्टेकली, ठीक है, एक, बट इट इज क्रिएटेड अनइंटेंशनली मिस्टेकली बिटवीन टू पर्सन. कैसे बना कि हियर द पर्सन की वन पर्सन ले लेते हैं, हियर वन पर्सन मिस्टेकली एक्सेप्ट और यूज सम सर्विस और प्रोडक्ट. क्लियर? वो अगर यूज कर देता है तो इज बाउंड टू पे फॉर इट अकॉर्डिंग टू द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया. चलो और एक चीज रह गया कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है टू जस्ट टू प्रोटेक्ट either पर्सन either पार्टी, क्लियर, जिसका कुछ प्रोडक्ट और सर्विस दूसरे के पास रह गया गलती से मिस्टेकली और उसको वो यूज कर दिया तो वो डिनाई कर सकता है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना है. ठीक है? क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अपना जो दूसरा टाइप, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. So according to second one is according to performance. Clear? According to performance, और जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? फॉलो करना, एग्जीक्यूट. जिसका मतलब मैंने कुछ प्लान किया, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, मैंने सोचा, एग्जीक्यूट किया, उसको काम में लगाया. तो एग्जीक्यूशन मतलब हियर एग्जीक्यूशन मतलब what you promised mutually, now it is the time to do the things that you promise. आपने जो promise किया है उसको करने का अभी टाइम आ गया. That means it is the time to perform or to mobilize or to follow what you promised to other party. That is called execution. ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट है कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है बेसिकली. एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटोरी एंड दूसरा तो यूनिलेटरल और बायलेटरल. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी हो गया, ये आ गया डी. जैसे कि मैंने आपको वो क्लास में बता दिया कि टोटल 9 टाइप्स हैं, उसको 333 कैटेगरी में किया गया है. ठीक है? आप उसको कंटिन्यू लिख सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो. दैट इज योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड दिस इज माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन. आपको जो सही लगे आप वो कर दे. ठीक है? तो परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन,
तो उसको हम लोगे डी। क्या है? पहले तो है एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटोरी, इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा एग्जीक्यूटोरी मतलब पहले एग्जीक्यूटोरी कि पहले एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड पहले लेते हैं एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जो दूसरा जो तीसरा वाला है मतलब ऐसा नहीं है, कुछ कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है, बट इट इज बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम इसको अगर पहले देखेंगे तो ये रहेगा बेटर, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है। दोनों एग्जीक्यूटेड मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इन विच both the party, that is offerer or promisor or promisee, perform or executed his respective promise to each other. Clear? Means the contract in which both the parties, that is promisor and promisee, both the parties, that is promisor and promisee, performed or executed their respective promise for each other, the contract in which both the parties, that is promisor and promisee, performed or executed their respective promise for each other. दोनों ने अपने एक दूसरे को जो जो प्रोमिस किया था, दोनों अपना अपना साइड का जो है काम प्रोमिस वो परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? In executed contract, after performance by all the parties, the contract is said to be completed. परफॉर्म करने के बाद वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब हो गया, बाकी और कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, और जिसको हम बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो पर्पस के लिए हमने बनाया था वो पर्पस तो फुलफिल हो चुका है, दोनों अपना अपना कर चुके हैं, तो अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है, दैट इज completed. We can say the contract is completed or the contract is terminated. कैंसिल कर दिया जाएगा अब इसको, क्योंकि टर्मिनेशन का बहुत सारा रीजन रहता है, वो हम देखेंगे। क्लियर? तो उसका एक पर्पस, एक रीजन है कि बिकॉज ऑफ खत्म हो गया सब कुछ, जो एक दूसरे के साथ करना था वो कर दिए, अभी खत्म। क्लियर? सो एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या हो गया कि सोचो कि मिस्टर राजन ऑफर मिस्टर राकेश टू सेल his building at Mumbai for rupees 70 lakh and to accept the payment through account transfer. Mr. Rajan offer Mr. Rakesh to sell his building at Mumbai. मुंबई में उनका एक बिल्डिंग है जिसको क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया, किसने? राजन ने राकेश को बोला कि मेरा मुंबई में एक फ्लैट है,
बिल्डिंग है वो आप ले लो 70 लाख में, और अगर वो एक्सेप्ट करते हो तो पेमेंट मुझे अकाउंट ट्रांसफर में चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, मिस्टर राजन accept the proposal and transfer the price to the account of राकेश ने एक्सेप्ट किया। accept the proposal and transfer the price to the account of Mr. Rajan, and Mr. Rajan transfer the possession with document to Mr. राकेश। आ रहे समझ में? देखो स्टूडेंट्स, एक चीज को आपको इधर बहुत सही से ध्यान देना है कि एक जो एग्जांपल में प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है। प्रोमिजर जो स्टार्ट करता है, प्रोमिजी जिसके लिए स्टार्ट करता है। ठीक है, क्लियर? सो राजन हियर प्रोमिजर, राकेश प्रोमिजी, उसको गया। राजन ने राकेश को बोला कि मेरे पास मुंबई में एक अपना फ्लैट है, मैं उसको बेचना चाहता हूं 70 लाख में, इफ यू एक्सेप्ट इट देन यू हैव टू ट्रांसफर मी, क्लियर? जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो राकेश ने उसको एक्सेप्ट किया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 70 लाख, और उसके बदले में राजन ने भी क्या किया, जो बिल्डिंग का जो पोजीशन है, क्लियर? पोजीशन मतलब पोजीशन का सिंबल क्या है कि जो चाबी, उस चाबी और डॉक्यूमेंट के साथ उसको दे दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में राजन वन पार्टी, राकेश अनदर पार्टी, बोथ द पार्टी परफॉर्म्ड हिज रेस्पेक्टिव प्रोमिस, दोनों ने जो जो प्रोमिस किया था वो परफॉर्म हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी एंड में क्या होगा, दोनों का तो खत्म हो गया ना काम, अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक पर्पस के लिए, उसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। एक पर्पस कंप्लीट हो गया देन हम उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ एग्जीक्यूटेड, सो इट इज नाउ टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, क्लियर? आ गया? नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड के बाद बाकी दूसरा क्या है, दूसरा है एग्जीक्यूटोरी। तो एग्जीक्यूटोरी में आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जीक्यूटोरी मतलब फ्यूचर टेंस में है, वो मतलब दोनों ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया है, एग्जीक्यूटोरी परफॉर्म होगा। एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? मतलब परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस होगा। दोनों ने नहीं किया है, कोई भी हो सकता है, अगर इधर दोनों ने नहीं किया है और एक ने किया है दूसरे ने नहीं किया है, मतलब दोनों ने नहीं किया है, बस इतना तो श्योर है, दोनों के तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, और इधर एक कर सकता है, क्लियर? और दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट in which either of the parties, either promisor or promisee performed his obligation, either of the parties performed his obligation, or both the parties not performed their respective obligation। आ रहा है समझ में कि a contract in which either of the party means either promisor or promisee, कोई भी कर सकता है। चलो हम ले लेते हैं जो प्रोमिजर है और प्रोमिजी है,
ठीक है, तो चलो हम ले लेते हैं प्रोमिसर ने किया है, प्रोमिजी ने नहीं किया है, और प्रोमिजी ने किया है, प्रोमिसर ने नहीं किया है। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा जो मैंने बोला, और बोथ दी पार्टीज नॉट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, ना तो ए प्रोमिसर ना प्रोमिजे, ये तीनों केसेस में क्या हुआ, अभी तक जो होना था, होना जो है, जो होने को है, जो प्रोमिस किया गया वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूटोरी होगा। कब होगा? सोचो कि प्रोमिसर ने कर दिया है, प्रोमिजी करेगा, करेगा, एग्जीक्यूटोरी होगा। प्रोमिजी ने कर दिया है, प्रोमिसर करेगा, एग्जीक्यूटोरी होगा, करेगा। और दोनों ने नहीं किया है, दोनों करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट either party performed or no, clear, both the party will not perform their respective obligation. Clear? They supposed to do it soon. They supposed to do it soon. ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो करना चाहते हैं, ठीक है, बट soon, जल्दी ही करेंगे, तो वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट का हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये जो एग्जीक्यूटरी होता है हम उसको बोलते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटेड और फुल्ली एग्जीक्यूटरी। क्लियर? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटेड किसको बोलेंगे? पार्टली मतलब इधर प्रोमिसर ने किया है, जिसको हम बोले प्रोमिसर ने किया है, प्रोमिसी ने नहीं किया है कि नहीं, और नहीं तो प्रोमिसी ने किया है, प्रोमिसर ने नहीं किया है, जिसको हम बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड। मतलब एग्जीक्यूट हो गया है बट पार्टली, वन पार्ट एग्जीक्यूटेड, अनदर पार्ट इज एग्जीक्यूटरी। और फुल्ली एग्जीक्यूटरी दोनों ने नहीं किया है, ना तो प्रोमिसर ने किया है, ना ही प्रोमिसी ने किया है, तो उसका हम बोलेंगे फुल्ली एग्जीक्यूटरी। क्लियर? पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड फुल्ली और फुल्ली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इसको हम बोलेंगे इट इज आल्सो सजेस्टेड एज, इसको हम ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड और फुल्ली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके? क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेंगे वही पुराना वाले ले लो जो एग्जीक्यूटेड में लिया, ठीक है, कि मिस्टर राजन और मिस्टर राकेश का एंड मिस्टर राकेश का, ठीक है, ले लो इधर पार्टी में से, चलो राकेश ने पेमेंट दे दिया है और राजन ने पोजीशन और डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो राकेश परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन बट राजन येट परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, तो इसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड, बिकॉज राकेश परफॉर्म बट राजन नॉट परफॉर्म। क्लियर? और ऐसा ले लो कि दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बट दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, ना ही ये पेमेंट दिया है ना ही वो डॉक्यूमेंट दिया है, दोनों ने नहीं किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम्पल को आप लिख दो, ठीक है? क्लियर? बाकी दैट द थर्ड वन, दैट इज द यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या यूनिलेटरल बाइलेटरल? A contract in which only one party is to perform his obligation. A contract in which only one party is to perform his obligation is called as यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि हमने देखा कि पार्टली एग्जीक्यूटेड में देखा ना, पार्टली एग्जीक्यूटेड मतलब ओनली वन पार्टी ही
एक पार्टी ने कर दिया है, दूसरा पार्टी करेगा, उसका हम बोलेंगे यूनिलेटरल। मतलब वन पार्टी इज ऑलरेडी परफॉर्म एंड अदर पार्टी येट टू परफॉर्म। ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी इज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। एक पार्टी परफॉर्म करेगा क्योंकि दूसरा पार्टी कर चुका है कि नहीं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल। मतलब वन साइडेड, एक साइड से खत्म हो चुका है, दूसरा साइड बैलेंस है, उसका हम बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ले लो। अगर सोचो कि राजन ने डॉक्यूमेंट दे दिया है, राकेश ने पेमेंट नहीं दिया है, और राकेश ने पेमेंट दे दिया है, राजन ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कि मतलब एक पॉइंट के बाद उसको हम बोलेंगे कि पार्टली एग्जीक्यूटेड और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि राजन ने कर दिया है और राकेश ने कर दिया है, इधर दूसरे पार्टी को करना पड़ेगा आगे, ठीक है। ये हो गया यूनिलेटरल। दूसरा क्या है? बाइलेटरल। ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच both the party is to perform his obligation, obligation मतलब promise, is called as bilateral contract, जिसको हमने बोला ना फुल्ली एग्जीक्यूटोरी, मतलब दोनों ने नहीं किया है, दोनों ही करेंगे, एक दो, राजन राकेश दोनों ने नहीं किया, दोनों ही करेंगे, उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ऐसा स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है जहां पे कि एक पार्टी को कुछ भी करना नहीं रहता है, दूसरी पार्टी ही करेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल। जहां पे दोनों को करना है उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? सही है, चलो देन हम देखेंगे स्टूडेंट्स द लास्ट वन, द थर्ड कैटेगरी, दैट इज contract according to the validity, according to the validity or according to the enforceability, जो कि हमने टर्म्स में जैसे हमने पढ़ा था बेसिक टर्म, वो टाइम पे आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों है कि नहीं, GHI, ये जो अपने कैटेगरी के हिसाब से वैलिड, वॉइडेबल और है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं। ये तीनों मैं आपको बोल चुका हूं, है कि नहीं, कि ये तीनों में था जो कि सेक्शन के हिसाब से हमने जो देखा था बेसिक टर्म में, है कि नहीं। वैलिड, क्लियर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, वॉइडेबल 2I एंड वॉइड 2J। 2H 2I और 2J के हिसाब से क्या है इसका मीनिंग, है कि नहीं। वैलिड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड बाय लॉ, दैट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ either पार्टी, वन और मोर पार्टी, बट नॉट बाय द either पार्टी, जिसको हमने अच्छे से समझा था। मतलब लॉ जिसको परमिशन देगा वो ही उसी को चांस दिया जाएगा कि आप अगर बोलोगे तो होगा, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब जिसके तरफ से मिस्टेक हुआ है उसको नहीं लेंगे, उसको परमिशन नहीं मिलेगा, जिसने उसको फेस किया है उसको परमिशन मिलेगा, दैट इफ यू वांट वी विल एनफोर्स इट, इफ यू डोंट वांट वी कैंसिल इट। सो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल, जो कि हम कैंसिल कर सकते हैं, इधर वैलिड और कैंसिल, वो मिडिल पोजीशन पे है। इफ यू वांट वी वैलिड इट, इफ वी डोंट वांट वी कैंसिल इट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल। और वॉइड जो कि कैंसिल। ऐसे कुछ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि आप नहीं कर सकते, वॉइड हम उसको बोलेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो क्यों नहीं एनफोर्स हुआ, ठीक है, एनफोर्स क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इट मे नॉट फॉलोइंग सम डॉक्यूमेंट और सम लीगल रिक्वायरमेंट, दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स। और हम देख सकते हैं उसको कि द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि आगे जाके इनिशियली इट में भी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो सही था, जैसे हमने लिया था एग्जांपल की एक कॉन्ट्रैक्ट विद एन अलाइन एनिमी। अलाइन मतलब आपका नेबर कंट्री। सोचो कि एक पाकिस्तान के आदमी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना था, जब हुआ तभी आप दोनों दोस्त थे, आपके बीच में सही हुआ।
बट आफ्टर व्हेन मतलब एग्जीक्यूटोरी जब सिचुएशन में था, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है, वो टाइम पे क्या हुआ कि वार ब्रेकआउट हो गया दोनों के बीच में, तो पाकिस्तान इज डिक्लेयर एज द अलाइन एनिमी। तो एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इन दैट केस, लेटर केस, योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ। इधर आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप बोलोगे तो होगा, आप बोलोगे तो नहीं होगा, एज लाइक वॉइडेबल, नहीं, वॉइडेबल सिचुएशन नहीं आएगा। लॉ अपने तरफ से ही डायरेक्टली उसको कैंसिल कर देगा कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग, क्लियर। और उसके हिसाब से मतलब जो गाइडलाइन के हिसाब से योर कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक सच नेचर बिकॉज ऑफ विच योर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। आप उसको एनी हाउ परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि राजन और राकेश का जो एग्जाम्पल लिया, और कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ए बी कुछ भी, आप अभी इतना माइंड आपका मैच्योर हो गया है, बेसिक टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनता है, इतने क्लासेस में आई होप कि आप अभी अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हो। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो वैलिड का, मैं बोलता हूं कि राजन राकेश ले लो कि वो दोनों ने अपना अपना कर दिया है कि नहीं, सो दैट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उनका जो जो एसेंशियल एलिमेंट था सब फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, अपना अपना प्रोमिस परफॉर्म कर दिए, सो दैट इज कॉल्ड ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल कि चलो जब राकेश राजन का ही ले लो, राकेश को पता चला कि राजन का जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड बिल्डिंग है, हॉन्टेड मतलब भूतिया, उसको पता चला है कि नहीं, वो उसको सच नहीं बोला, क्लियर, मिसरिप्रेजेंट किया, तो उसके हिसाब से राकेश को मिलेगा चांस, ऑफर मिलेगा कि अगर इफ यू वांट देन वी विल मेक इट वैलिड, इफ यू डोंट वांट विल वॉइड इट, ठीक है। तो राजन अपने हिसाब से वो सोचेगा कि चलो ले लेते हैं, पूजा पाठ करके वो सही कर देते हैं, अच्छा बिल्डिंग है, वो बोलेगा तो ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा। अगर वो बोलेगा नहीं हॉन्टेड है, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको हम वॉइड कर देंगे, ठीक है। और वॉइड मतलब जो इंडिया पाकिस्तान का ले लो और कोई भी एक देश के साथ ले लो, क्लियर, इंडिया बांग्लादेश ले लो, इंडिया चाइना ले लो, कोई भी ले लो, क्लियर। वो एग्जाम्पल आप तीनों, मतलब जो डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस क्लासेस, और ज्यादा कुछ देने का नहीं है, ठीक है। बस आप एक जो एग्जाम्पल वो टाइम पे हमने शायद लिखा था, ठीक है, याद नहीं है दिया था कि नहीं दिया था, आप अभी उसमें ये तीनों में एग्जाम्पल ऐड कर दो। ये चीज को बाकी रिपीट करके क्लास को लेंदी करना कोई फायदा नहीं है। आप लोग बिकॉज ऑफ ये आपको पहले से समझा चुके हैं, इसलिए मैं इसको अभी और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, ओके, क्लियर। सो विद दिस हमारा जो था आज का टॉपिक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें अगर कुछ डाउट रह गया, ठीक है, कोई मिस्टेक है, मेरा कुछ मिस्टेक रह गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया और कुछ डाउट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो डेफिनेटली आप फ्रैंकली अपना व्यू, ठीक है, जो ये वीडियो को लेके अपने कमेंट बॉक्स में दे दो, उसके रिगार्डिंग आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, okay. So with this we conclude the class and see you in the next class. Thank you.